दोस्तों मैं राज बोल रहा हूँ। शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है। और ये वीडियो जो है इसमें मैं जेफ गैलिन वाला मीटिंग एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बहुत लोगों ने मुझे सवाल पूछे हैं कि भाई आप इसका हिंदी वीडियो बनाइए। जेफ तो हिंदी बात नहीं करते, तो उनका हिंदी में इंटरव्यू लेना तो कोई सवाल है आता ही नहीं है। तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ कि जो उनके साथ इंटरव्यू हुआ था उसको पीस बाय पीस मैं यहाँ पर पेश करूँगा, फिर उसका अनुवाद कर दूँगा हिंदी में आपके लिए, मेरा सवाल भी और उनका जवाब भी। तो शुरू करते हैं, चलिए। Here, thanks for joining us again. Can you just give us more insight onto what you spoke about in the live stream for our audience, especially on the extra results that you got after phase 1 of AGT 103-T clinical trials? Sure. I know we're tight for time today, so I'll say it quickly. But the big news at our announcement was threefold. One was that we had a very successful phase 1. Really, the data almost couldn't have been better. So we got 100% safety, 0 serious adverse events in the repair clinical trial phase 1 protocol, right? And then we did blood markers of efficacy that showed that the cells get in there and behave like we expect them to behave in the bloodstream. So they engraft, persist, don't get infected, and they keep fighting HIV. So that's a 1-2 punch where you get safety and, efficacy signal. Now, we rolled from there into an IRB approved study where we withdrew people from their antiretrovirals. And because even though their cell count of the specific HIV fighting cells that were protected against HIV, it would naturally go lower because they were still on their antiretrovirals, so the cells are unstimulated. So there was a small quantity left over after we had measured these people for sometimes up to a year and a half, right? So there was a decline in the number of cells. But when we took them off their antiretrovirals, we got really exciting immunological data saying that the immune system's reacting properly to HIV instead of becoming devastated by it. There was lots of signs that the T cells are reacting the way they're supposed to instead of what they typically do when you take somebody off their antiretrovirals. So instead of T cell counts going down, the CD4 is going down and CD8 staying stable, we were seeing CD4 counts staying stable and CD8 counts going up. That is an indication that the body is mounting an effective immune response against the virus. And we actually then took people off a second time from their antiretrovirals and got even better data. And it turns out the first exposure to the virus was like a vaccine. Stimulated the cells, activated them, got them all prepped into their effector state. And when we took them off a second time, we got even better data. All this stuff will be published in an article. We hope that we'll complete the article sometime this summer, and maybe in the 3rd or 4th quarter, you should see an article out where you can just read all of the details of this. But it was really encouraging. And so that was the first 2 parts of the announcement. The third one was the data is so good, we're spinning out Adammune to be our HIV only company. We're taking everything that we've developed for HIV cure, we're putting it into a separate company. We're going out and making a big raise to power this, to put rocket fuel behind that, and then to focus the entire company on HIV only to maximize the probability of success. And I think a lot of people that are listening to this, maybe there are people that are interested in corporate development, but I think a lot of them are also interested in, they'd like to see an HIV cure. Yes. And I think this is our best way to, drive towards that goal as efficiently and with the maximum chances of success possible. तो दोस्तों मैंने यहाँ पर सब पॉइंट्स लिख के रखी है जो जेफ गैल्विन ने कही, ताकि कोई भी पॉइंट छूके नहीं। तो पहली बात उन्होंने ये की कि फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल में 100% सेफ्टी देखने को मिला। उनके पास शायद 7 पेशेंट्स थे, उनमें 7 के 7 किसी को भी कोई तरह की एडवर्स इफेक्ट नहीं हुई। हमेशा फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल का सेफ्टी ही गोल होता है, तो उसमें 100% सक्सेस हो गया। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने ये भी देखा कि जो उन्होंने मॉडिफाइड CD4 टी सेल बॉडी में डाले, जिसमें से CCR5 निकाल के अंदर SI
RNA डाल के भेजे थे, वो एंगेज कर रहे थे, एनग्राफ्ट हो गए थे बॉडी के अंदर, परसिस्ट कर रहे थे, यानी कि ज़्यादा दिन तक वो जीवित रह रहे थे, उनको ख़त्म नहीं किया गया बॉडी की रेजिस्टेंस से, और वो इन्फेक्ट भी नहीं हो रहे थे HIV से। तो ये दो है, ये तो इनको बोनस रिजल्ट मिल गया, क्योंकि ये सब चीज़ें हम फेज़ 2 में देखते हैं, तो इन्होंने फेज़ 1 में ही डेटा कलेक्ट करके देख लिया कि सब ठीक चल रहा है। दोस्तों, इसके अलावा जेफ गैल्विन ने कहा कि उन्होंने IRB अप्रूव्ड स्टडी की और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए। तो पहले आपको मैं समझा दूं IRB क्या होता है। अभी फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल तो ख़त्म हो गया, जब तक वो फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल का डेटा और फेज़ 2 के लिए जो स्ट्रेटजी है वो सब FDA को देकर FDA अप्रूव न करे, तब तक वो फेज़ 2 में नहीं जा सकते। लेकिन इसके बीच में जो समय जाता है उसे ज़ाया न करे, या इसके लिए फेज़ 2 की तरह स्टडी उसके पहले करना हो तो कंपनी कर सकती है, और कंपनी करना भी चाहती है ताकि उनको पता चल जाए कि सक्सेस कितना हो सकता है, उन्हें वेट नहीं करना है। लेकिन अगर हर एक कंपनी को खुली छूट दे दी जाए कि आप फेज़ 1 के बाद और फेज़ 2 के पहले टेस्ट कर सकते हो, तो जो वॉलंटियर पेशेंट्स है उनकी रक्षा कौन करेगा, राइट? इसलिए IRB बनाए गए, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड। ये जो है FDA में रजिस्टर होते हैं, उनको FDA में रजिस्टर करना पड़ता, और ये एक्सटर्नल बोर्ड होती है एक्सपर्ट्स की, और वो लोग क्या देखते हैं कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट है क्या। इसका मतलब है कि पेशेंट जो ट्रायल में शामिल होने वाले हैं, क्या उन्हें पता है कि उनके ऊपर क्या ट्रीटमेंट की जाने वाली है, उसका क्या असर हो सकता है, उसके क्या रिस्क है, क्या कंपनी ने उन्हें अच्छी तरह से समझाया है और सही तरह से सारी जानकारी दी है, और क्या उस पेशेंट ने क्लिनिकल ट्रायल में खुद की मर्ज़ी से ये सब जानते हुए साइन किया है। तो ये देखते हैं, इन्फॉर्म्ड कंसेंट देखते हैं, और पेशेंट की रक्षा और वो जो IRB अप्रूव्ड टेस्ट होगी उसमें सुरक्षा सब देखने के लिए वो पूरी सिस्टम बना के रखी है IRB ने। और जब कंपनी IRB के पास से अप्रूवल ले लेती है तो फिर वो एक्स्ट्रा जांच कर सकते हैं। तो इस ट्रायल में जो है, इस क्लिनिकल ट्रायल में, फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल में 100% सेफ्टी तो पता चल गई। ये भी पता चला कि CD4 टी सेल्स जो मॉडिफाई करके AGT का टी सेल्स डाले थे बॉडी में, वो एनग्राफ्ट हुए और वो जीवित रहे, उन्हें शरीर ने मार नहीं डाला उन CD4 टी सेल को, और वो CD4 टी सेल HIV से इन्फेक्ट भी नहीं हुए। तो ये समाचार तो इनको ऑलरेडी मिल गई फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल में, डेटा कैप्चर में ही। तो उसके सहारे IRB के पास अप्रूवल लेकर इन्होंने जो 7 लोग थे उनमें से उनको सब पूछा कि क्या आप ART रिमूव करके एक और हम स्टडी करना चाहते हैं, ART बंद करके, क्या आप करना चाहते हो? तो 7 में से मेरे हिसाब से 6 लोगों ने हाँ बोल दिया। वो 6 लोगों को ART से निकाले, फिर देखा कि उनका इम्यून सिस्टम बराबर काम कर रहा था, CD4 सेल्स की मात्रा कम नहीं हुई। ART बंद करने से CD4 के नंबर घटने लगते हैं, इस केस में ART बंद करने के बाद CD4 की नंबर कम नहीं हुई। उसका मतलब है CD4 सेल परसिस्ट कर रहे हैं, इन्फेक्ट नहीं हो रहे हैं। दूसरा, CD8 सेल की मात्रा बढ़ रही थी। तो जब CD4 सेल HIV को देखता है तो वो CD8 सेल को बताता है कि भाई ये HIV का खात्मा करो, और CD सेल जो है HIV के पीछे पड़ जाती है और HIV को मारने के लिए CD8 सेल अपनी संख्या बढ़ाने लगती है। तो यहाँ पर संख्या बढ़ रही है। ये जो IRB अप्रूव्ड स्टडी है उसमें, तो इसका संकेत ये होता है कि शरीर जो है HIV को लगातार HIV के साथ लड़के HIV को दबाए रखता है, क्योंकि वायरल काउंट लो ही रही, जैसे कि आप ART में हो उसी तरह से। तो ये था इनका IRB अप्रूव्ड स्टडी। उसके बाद उन्होंने एक और टेस्ट शुरू किया, उसमें इससे भी अच्छी डेटा आई है, और वो डेटा इन लोग इस साल के 3rd क्वार्टर नहीं तो 4th क्वार्टर में एक प्रसिद्ध जर्नल, मेडिकल जर्नल में पब्लिश करने वाले हैं। तो ये बताया जेफ गैल्विन ने, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि एड इम्यून नाम की एक कंपनी उन्हें बनाई है, अलग कंपनी बनाई है, उसके अंदर AGT 103-T को डाल दिया, और ये जो कंपनी है एड इम्यून, ये सिर्फ और सिर्फ HIV का ट्रीटमेंट के पीछे पड़ेगी, और फिलहाल तो AGT 103-T को क्लिनिकल ट्रायल फेज़ 2 में ले जाकर
उसको अप्रूवल करा के उसे मार्केट में लाने की कोशिश पे लगेगी। और इस कंपनी को किसी तरह की जो फंडिंग चाहिए वो सब अलग से मिल जाएगी और ये अमेरिकन जीन टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर नहीं रहेगी। तो इस तरह से जवाब दिया जेफ गैल्विन ने। जब मैंने उनको पूछा कि आपने जो लाइव स्ट्रीम में इंग्लिश में जो घोषणा की थी लोगों को, हमारे चैनल वाले चाहते कि आप उसे उन्हें समझाए, तो ये बताया था उन्होंने और मैंने आपको ये अनुवाद करके बताया। अभी देखते हैं हमारा दूसरा सवाल। And Jeff, can you just give our audience a rough idea of what is the time frame we are looking for phase 2 and probably going further into various parts of the market? Sure. So, so we think that the data that we just submitted to the FDA for the phase 1, we think it justifies a phase 2. We've made very small adjustments to the treatment protocol. The main thing being that instead of waiting a year and a half to take people off antiretrovirals, we want to do it right away while the number of these cells is at its maximum in the body. Yes. I think that will have a big difference in terms of the overall potency of the drug, right? To have more of these supercells in the body ready to fight HIV as it comes out of the viral reservoir. So that's the biggest change in the protocol. And so we don't think that's a heavy lift, for the FDA to understand it and to discuss any of the safety implications, and for us to put things in place that make sure that the patients are protected under all, things that could be anticipated. So that's the plan. And we think that there's some possibility of getting, like a reasonable possibility. It's our aspiration to get an approval for the phase 2 protocol this year and to start it early next year, which would mean a year after that, we'd start to get some data. So I think that, that's sort of probably the schedule that people want to know. And some data wouldn't be, the end of the phase 2 study, but it would give us a sense of where the efficacy level is going to land. And if it's high enough, what we would do is we would take that data back to the FDA even mid-study and see if we can go ahead and modify the protocol into a pivotal study with some new endpoints. The idea is to get this to the people as quickly as possible. And of course, that's also good for the investors and, everybody, all the stakeholders in this project. तो दोस्तों, दूसरा सवाल मैंने पूछा कि कितना टाइम लगेगा ये AGT को अप्रूव होके मार्केट में आने के लिए। तो उन्होंने जवाब दिया कि ऑलरेडी उन्होंने डेटा दे दिया है FDA को फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल का, और उन्होंने फेज़ 2 के लिए जो प्रोटोकॉल है उसको थोड़ा चेंज किया। पहले उनका प्रोटोकॉल था कि AGT 103 डाल के 1 साल के बाद फिर ART बंद करेंगे। अब की बार उन्होंने क्या किया, प्रोटोकॉल ऐसा किया कि AGT 103 देते ही तुरंत ART से पार्टिसिपेंट्स को निकाल देने का है, ART बंद कर देना है। और ये सोचते हैं कि अप्रूवल जो है फेज़ 2 शुरुआत करने के लिए वो शायद इस साल में आ जाएगा और फेज़ 2 अगले साल शुरू हो जाएगी, ये उनका अनुमान है। और ये कहते हैं कि जब फेज़ 2 शुरू हो जाएगी, अगर उसका डेटा हाई एफिशिएंसी बताता है, यानी कि बहुत अच्छी तरह से AGT 103 काम करता है, इस तरह से अगर संकेत मिले डेटा में से, तो वो प्रोटोकॉल को मॉडिफाई करेंगे FDA के साथ बात करके और एक नई स्टडी बनाएंगे जिसमें नए एंड पॉइंट्स होंगे। तो दोस्तों, आपको एंड पॉइंट्स समझ में आना चाहिए। एंड पॉइंट्स जो है एक टेक्निकल टर्म है जो ये ड्रग कंपनीज यूज़ करती हैं, जिसमें FDA जो बताता है कि ये चीज़ें होने से आपको अप्रूवल मिलेगी, तो वो चीज़ों का जो लिस्ट होता है उसको हम एंड पॉइंट कहते हैं। कभी कभी एंड पॉइंट डायरेक्ट होता है, कभी कभी एंड पॉइंट इनडायरेक्ट होता है। तो मिसाल के तौर पर समझ लीजिए आप हार्ट डिजीज़ के लिए एक दवा बना रहे हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और वो कोलेस्ट्रॉल कम होने की वजह से हार्ट अटैक नहीं होगी। तो उसमें 2 एंड पॉइंट्स हो सकते हैं। एक एंड पॉइंट ये कि आप सारे पेशेंट्स को 10-15 साल देखो कि किसी को हार्ट अटैक आती है कि नहीं और कितने लोग को आती है, वो डायरेक्ट एंड पॉइंट है, यानी कि सीधा जो ट्रीटमेंट किया था उसका। इनडायरेक्ट एंड पॉइंट ये होगा कि आप देखो कि कोलेस्ट्रॉल कितने लोग का कितना कम हुआ है, तो ये हो गया इनडायरेक्ट एंड पॉइंट। तो जेफ गैल्विन क्या कहते हैं कि हम अभी जो एंड पॉइंट दिए हैं वो एंड पॉइंट का भी हम फेरफार या बदल कर सकते हैं अगर रिज़ल्ट बहुत अच्छी आई तो, और ये सब इसलिए करेंगे ताकि हमें अप्रूवल जल्दी से जल्दी मिल सके। तो ये चीज़ें हमें
जवाब में बताई जेफ गैल्विन ने। अब जाते हैं मेरा अगला सवाल को। तो दोस्तों फिर मैंने पूछा जेफ को कि ये जो 2 कंपनी आपने बनाई है, एडइम्यून जो एजीटी से निकाल के आपने बाहर बनाई है, वो 2 कंपनीज के बीच में रिश्ता कैसे होगा। तो उन्होंने बताया कि दोनों कंपनी अलग अलग कंपनी हो जाएंगे। एजीटी जो है, अमेरिकन जीन टेक्नोलॉजी जो है, वो प्राइवेट कंपनी ही रहेगी। एडइम्यून जो है वो अलग कंपनी बन गई है, और अमेरिकन जीन टेक्नोलॉजीज जो है AGT 103 और उसके साथ संबंधित जितने भी जानकारी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, सब एडइम्यून को ट्रांसफ़र कर देगी। और ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का सेपरेशन होने के बाद एडइम्यून और AGT के बीच में कोई संबंध नहीं रहेगा। बस किसी तरह कोई भी और कंपनी जिस तरह AGT के साथ व्यवहार करेगा, उसी तरह एडइम्यून भी AGT के साथ व्यवहार कर सकता है। तो ये सेपरेशन के बाद दोनों के बीच में अंतर आ जाएगा, दोनों अलग अलग कंपनीज बन जाएगी। आगे चलकर एडइम्यून को अगर AGT के पास से कुछ टेक्नोलॉजी चाहिए तो किसी भी दूसरे कंपनी की तरह ही उसको समझा जाएगा। कोई भी कंपनी अगर अमेरिकन जीन टेक्नोलॉजी के पास आए कोई टेक्नोलॉजी का लाइसेंसिंग लेने के लिए, उनके साथ जिस तरह से अमेरिकन जीन टेक्नोलॉजी बर्ताव करेगी, उसी तरह से वो एडइम्यून के साथ भी बर्ताव करेगी, ऐसे बताया। और उन्होंने ये भी कहा कि दोनों कंपनी अलग होने के बाद AGT प्राइवेट ही रहेगा, लेकिन एडइम्यून जो है उसको पब्लिक लेके जाने का इरादा है, लेकिन वो समय नहीं बता सकते कि कब होगा वो और किस तरह से होगा। तो अमेरिका में अलग अलग तरह से कंपनी पब्लिक होती है। एक तो स्पैक होता है, स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी, और दूसरा होता है IPO। उन्होंने बताया कि ये अभी हमने कुछ ये सब तय नहीं किया है, इसके बारे में जानकारी फिर बाद में मिलेगी। तो अभी जाते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल को। In the health related aspects as well as the corporate aspects, now that we have covered those 2 bases, I want to come back to one of the questions of the audiences. Where will AGT be available once it is approved? Are you planning worldwide or just United States? No, absolutely worldwide. Now, it's all about economics, right? The first world countries can afford this today because they're spending more on HIV than it would cost to cure those people. So, it's not hard to convince the United States healthcare system to save money, right? But if you took that same, gene and cell therapy, it may not be affordable in every market from day one. But what I can say is that gene and cell therapy has a technology curve associated with it that is reminiscent of my days in computers. Nobody in, non-first world nations or even in first world nations ever believed they'd have a computer the power of the biggest mainframe in their house, in their kitchen, in a little box, or in their pocket. Yes. Or that those things would make it to Africa, sub-Saharan Africa. But it happened because that's what technology does. It gets better every year and cheaper every year. And in that environment, and under the competitive pressures also, right? Because gene and cell therapy, it has multiple ways to solve the same problem. So, just because we come up with the first HIV cure doesn't mean that we'll be able to sit there and, own that market forever if we don't improve as a company and come out with better and better cures at cheaper and cheaper prices. Well, that'll be true for the whole industry. And so I think that, our intent is to go globally. We'll go into every market where, we can do it without losing money. Right. And then, eventually we'll go into markets where we don't make any money because we're never going to make money there. But, we might be able to license partners inside that country that can somehow do it. Right. If we're willing to forego our license fees or whatever, even that's not off the table. You've seen that occasionally. Yes. And even current drug companies, global drug companies sometimes do that. That's good. I think it's I think people wherever you are on earth, there's a reason to have a little bit of hope for a brighter future. Yes. The further away you are from the epicenter where this is going on, which is the United States. And then it's further away based on economics because it's much easier to go to a country that has the infrastructure and, sort of the economic wherewithal to, afford something for this. But, it's going to get there just like, if you've seen cell phones in your village, you'll see gene and cell therapy eventually, and it'll probably be much faster than you saw cell phones.
दोस्तों, अगला सवाल मैंने जेफ को पूछा कि हमारे जो दर्शक हैं ज़्यादातर ये जानना चाहते हैं कि आप अगर अप्रूव हो गया आपका दवाई AGT 103-T, तो क्या आप सिर्फ अमेरिका में बेचेंगे कि दुनिया भर में बेचेंगे? तो जेफ गैल्विन ने बहुत थोड़ा लंबा जवाब दिया। उन्होंने काफ़ी कुछ आइडियाज़ बताए। पहली बात उन्होंने कहा कि हमें विश्व भर में इसे भेजना है, नंबर 1। दूसरा उन्होंने कहा कि फ़र्स्ट वर्ल्ड जो है, फ़र्स्ट वर्ल्ड किसे कहते हैं? अमेरिका, यूरोप, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब फ़र्स्ट वर्ल्ड में गिना जाता है। स्विट्ज़रलैंड, क्योंकि इनके पास जो है जनसंख्या है उसमें पर कैपिटा इनकम काफ़ी हाई होती है। मिसाल के तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स में मेरे ख्याल से $55,000 पर ईयर पर कैपिटा इनकम है। कनाडा में मेरे ख्याल से $45,000 पर ईयर पर कैपिटा इनकम है। तो और मेरे ख्याल से स्विट्ज़रलैंड में तो काफ़ी ज़्यादा है, मेरे हिसाब से तो $60,000 या उसके ऊपर होगा पर कैपिटा इनकम। जब लोगों की कमाई ज़्यादा रहती है तो ज़्यादा टैक्स भरते हैं, तो गवर्नमेंट जो रहती है वो भी काफ़ी धनवान रहती है। तो जेफ का कहना ये है कि फ़र्स्ट वर्ल्ड जो है उसमें अभी भी ट्रीटमेंट आ गया तो तुरंत हेल्थ सिस्टम को बोल देंगे, तो वो कहेंगे कि ज़िंदगी भर ART देने के बदले हम ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार है, चलो AGT 103 लगा दो, काम हो गया। तो ये हो सकता है फ़र्स्ट वर्ल्ड में। लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्हें इतना खर्चा करना नहीं जमेगा। तो उनका कहना है कि जब वो ये एक्चुअली कंप्यूटर क्षेत्र से आए हैं जेफ गैल्विन, माइक्रोसॉफ्ट में भी काम कर चुके हैं ये। तो उनका कहना है कि जब मैं कंप्यूटर में शुरू किया था तब बहुत बड़ा होता था कंप्यूटर, बहुत महंगा होता था और उसकी क्षमता बहुत कम रहती थी। अभी आपके पॉकेट में जो सेल फ़ोन है उसमें जितनी पावर है उतनी भी नहीं रहती थी उस महंगे कंप्यूटर में। तभी वो सिर्फ फर्स्ट वर्ल्ड में हुआ करता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी सुधरती गई तो कंप्यूटर्स भी छोटे बन गए और छोटे छोटे कंप्यूटर में बहुत इतनी ताकत है, इतना जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं, तस्वीरें बता सकते हैं, तस्वीरें चेंज कर सकते हैं। आप तो देखते हैं आपके पास जो सेल फ़ोन है वो भी एक तरह का कंप्यूटर ही है, इतना छोटा है लेकिन उसमें इतनी क्षमता है जो पहले नहीं थी। पहले तो हमारे पास सिर्फ सिंगल कलर की कंप्यूटर हुआ करती थी और वो भी बहुत महंगी रहती थी, उसमें मेमोरी भी बहुत कम रहती थी और महंगी मेमोरी रहती थी। तो जेफ गैल्विन का कहना ये है कि आज की तारीख में आप देखो तो अफ्रीका के अंदर भी जंगलों में जाओ तो वहाँ भी जो लोग रहते हैं उनके पास तो फ़ोन होता ही है, स्मार्टफोन के अंदर तो कंप्यूटर है ही। और वो कंप्यूटर इतना फास्ट है कि हमारे पास पहले जो कंप्यूटर हुआ करते थे शुरुआत में, इतने महंगे महंगे बड़े बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे, उससे ज़्यादा फास्ट और उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। तो जैसे जैसे वक्त जाता है टेक्नोलॉजी अच्छा बनता है, सस्ता बनता है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ती है और कंपटीशन के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी बढ़ती है और संख्या बढ़ती है बिकत की, और उसकी वजह से सब सस्ता होते जाता है। तो जेफ गैल्विन सोचते हैं कि ये सेल एंड जीन थेरेपी के साथ भी होने वाला है और वो कहते हैं एड इम्यून ग्लोबल जाने वाला है अल्टीमेटली, लेकिन पैसे का नुकसान किए बगैर। तो वो कहते हैं कि कोई जहाँ जहाँ जिस देश में नुकसान के बिना कर सकते हैं वहाँ पर पहले चले जाएंगे वो, और जहाँ जहाँ नुकसान होने वाला होता है कि इनको ये बनाने में नुकसान होगा तो क्या कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार, वो नहीं करना इन्हें। लेकिन वो कहते हैं कि वहाँ पर वो लाइसेंसिंग कर सकते हैं, जो लोकल है जो मैन्युफैक्चर करता है उसके लिए लाइसेंसिंग करके उनको टेक्नोलॉजी दे सकते हैं और उनका लाइसेंस फ़ी जो है वो या तो कम या न लेकर उसे गरीब देशों तक पहुंचाने की कोशिश करने का इरादा है उनको। और वो कहते हैं कि भले इंसान कहाँ भी रहता हो, गरीब से गरीब देश में रहता हो, उसे भविष्य के बारे में एकदम सकारात्मक यानी पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि जैसे सेल फोन गांव-गांव तक पहुंच गई, उससे जल्दी जीन एंड सेल थेरेपी गांव-गांव तक पहुंच जाएगी जहां पर लोगों की इसकी ज़रूरत है। तो ये जवाब दिया जेफ गैल्विन ने। And Jeff, thanks for explaining all this and taking time off your important schedule. There is one last question I'd like to ask, which was from one of the viewers. They were asking about whether you need a CRISPR license or something. Can you just speak a little bit about that?
Sure. We don't currently use CRISPR in any of our developments. And that's nothing against CRISPR. It's just not the right transportation, sort of editing capability for what it is that we want to do. But CRISPRs will get more and more reliable, and they will become more and more useful, and eventually they will intersect projects that we want to do. And we think of ourselves as being sort of editing technology agnostic. So all of those things to us are the delivery layer of the software for your cells, right? But what you write into those is what's important. So we focus on the tools level, which are components that you can reuse in any viral vector or in CRISPR or whatever. And then, providing those tools for application developers who hopefully will cure 10,000 diseases, over the coming decades, more efficiently, because we've developed reliable components that they can mix and match to form a foundation for those applications, much like an iPhone, right? I told you that the last time we got together, probably, that yes, component wise, that is the the dream of AGT is to just enable the development market for solutions in gene and cell therapy in a way where we can create tons of competition and tons of entrants that can use our platform, and to bring out solutions that maybe we hadn't even thought of. Right. Yeah, you had mentioned that in your new applications. So this is right. Yeah, you had mentioned that in your first interview, like Microsoft objects putting together and building into new applications. So this is amazing, Jeff. Thank you so much for giving us an insight into AGT, your plans going forward, and how everything would work out, and also giving hope to many of our viewers who are actually suffering from HIV, that the cure is on the way. It's going to go worldwide. And also you have a soft spot to make sure that you will do whatever you can from your perspective to make sure that it reaches far and wide. Of course, all these things will take time, and as time goes by. Yeah, the news has been great, and I think everybody has cause for hope, but it's still going to take some time to get there. And you heard the approximate schedule of the phase 2, and there's still more things to do on the end of that. And then we need to start distributing globally or doing clinical trials in more markets. So it's going to take some time, but people have been living with this for a long time. It's worth doing this. It's worth finding a cure. We're committed to it, and I think over the foreseeable future, this is not just possible but probable. And so, if people are feeling hope and a little bit of faith that it's coming, fine. We can't promise a fix this year or early next year and availability, over some specific time frame, but we can say, wow, the momentum is great, and we're feeling very optimistic, even confident that a solution is coming that will help a lot of people. हमारे सब्सक्राइबर बीरजीत ने कहा था कि राज आप उनको पूछिए कि क्रिस्पर इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, वो उनका क्रिस्पर के साथ टाई अप है होने वाला है क्या। तो जेफ गैलविन ने बताया कि हमारा जो CD4 मॉडिफाई करने का जो कामकाज है उसमें हमें क्रिस्पर थेरेपी की क्रिस्पर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, तो हम वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। और उन्होंने ये भी खुलासा किया कि अमेरिकन जीन टेक्नोलॉजीज़ कंपनी जो है, हालांकि उन्होंने AGT 103 बनाया है अभी, लेकिन उनका जो फोकस है आगे चलकर इसमें रहेगा कि वो टूल्स बना सके और कंपोनेंट्स बना सके जिसका इस्तेमाल करके बाकी की कंपनियां अलग अलग तरह के दवा बना सकते हैं। तो ये मैं आपको थोड़ा सा कंप्यूटर के हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम लोग ये समझ लेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, आप सब्र से सुनिए। तो अभी कंप्यूटर्स में जो प्रोग्रामिंग होती है उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो कोई एक तरह का काम करेगा, या तो वो स्क्रीन में आपको एक तस्वीर बताएगा, या तो वो आपके पास से कुछ नंबर या अल्फ़ाबेट्स लेगा, उसका कुछ करके उसका रिज़ल्ट देगा। तो आज की तारीख में लोग ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना के रखते हैं। तो समझ लीजिए मुझे यहाँ पर स्क्रीन पे चाहिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।
तो मुझे बैठकर बनाने की ज़रूरत नहीं, किसी ने बना के रखा है तो मैं उठा के मेरे वीडियो में डाल देता हूँ। और मुझे समझ लीजिए नरेंद्र मोदी का स्पीच चाहिए, तो मैं कहीं से नरेंद्र मोदी का स्पीच निकाल कर उसको मेरे वीडियो में डाल सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पर क्या मिला है, तरह तरह के कंपोनेंट्स मिले एक वीडियो बनाने के लिए। उसी तरह सॉफ्टवेयर भी होता है कि छोटे छोटे कंपोनेंट्स को मिला के आधा तो काम उसी में हो जाता है और उसके ऊपर एक्स्ट्रा जो स्पेशल काम करना है वो करा के एक नया सॉफ्टवेयर बन जाता है। तो आज की तारीख में अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाने जाओ तो आपको जो कीबोर्ड में कोई टाइप करता है उसको पिकअप करना है, उसके लिए कोड लिखने की ज़रूरत नहीं, उसका ऑलरेडी होता है। और आपको स्क्रीन में कुछ ड्रॉ करना है, उसके लिए आपको कोड लिखने की ज़रूरत नहीं, उसका भी ऑब्जेक्ट होता है। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट को इकट्ठा करने के बाद आपको आराम से क्या मिलता है कि यूज़र का इनपुट लेने के लिए ऑब्जेक्ट मिल जाता है, स्क्रीन में डिस्प्ले करने के लिए ऑब्जेक्ट मिल जाता है, आवाज़ सुनाने के लिए ऑब्जेक्ट मिल जाता है, माइक से रिकॉर्डिंग करने के लिए ऑब्जेक्ट मिल जाता है। फिर आपका काम क्या है, बाकी ये सब चीज़ को लेके अंदर जो प्रोसेसिंग करना है वो खाली आपको उतना लिखना पड़ता है। उसकी वजह से जो डेवलपमेंट करने का टाइम होता है सॉफ्टवेयर का वो काफ़ी कम हो जाता है। जेफ गैल्विन का जो ख्याल है अमेरिकन जीन टेक्नोलॉजी के लिए वो ऐसा है कि हम प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके दूसरी कंपनियां जो है उनके दवाओं को जल्दी से जल्दी बनाकर पेश कर सकें। तो मिसाल के तौर पर मैं आपको एक बताऊं कि अगर जीन थेरेपी आपको सेल में पहुंचानी है तो उसके लिए एक वायरल वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर अमेरिकन जीन टेक्नोलॉजी ने एक ऐसा वायरल वेक्टर बना लिया, अलग अलग तरह के वायरल वेक्टर बना लिए जो शरीर के अलग अलग सेल्स में जाकर डिलीवर कर सकते हैं जीन थेरेपी, तो वायरल वेक्टर को दूसरे कंपनी को खोजने की ज़रूरत नहीं। अगर उसने FDA के पास से अप्रूवल करके ले लिया उस वायरल वेक्टर का, तो वो वायरल वेक्टर कोई भी इस्तेमाल कर सकता है उनके प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, क्योंकि उन्हें गारंटी होगी 100% के अगर हमें लीवर में पहुंचानी है तो लीवर में जाएगा। और उनको AGT बता सकता है कि इस वायरल वेक्टर के अंदर आप कितना जीन थेरेपी डाल सकते हो, कितनी मात्रा तक डाल सकते हो, वो सब उनको रेडीमेड मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। ये एक मिसाल के तौर पे। तो इसकी वजह से क्या है कि नए कंपनी को नए सिरे से सब शुरू नहीं करना पड़ेगा कि पहले वायरल वेक्टर बनाओ, फिर उसको सही पार्ट ऑफ द बॉडी में जाने के लिए ट्यून करो, फिर उसके बाद उसको इस्तेमाल करो। वो सब करने की ज़रूरत नहीं, उतना टाइम और ख़र्चा उनका बच जाएगा। तो इस तरह से जेफ गैल्विन सोच रहे हैं कि अगर उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें तरह तरह के कंपोनेंट मिलेंगे, तो थर्ड पार्टी ड्रग डेवलपर्स जो है अलग अलग कंपोनेंट्स यहाँ से लेकर उनका जो ड्रग डेवलपमेंट टाइम है और ख़र्चा है उसको काफ़ी कम कर सकते हैं। तो इस तरह से होता है। और हमारे जो भाई बहन हैं जिन्होंने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की होगी उनके लिए एक दूसरी तरह की उदाहरण मैं दे सकता हूँ। समझ लीजिए आप टेलर हो और आपको शर्ट सिलानी है। तो पहले ज़माने में कैसे होता था कि कपड़े को कट करना पड़ता, फिर उसके बाद लिंक बनाते हैं, कफ बनाते हैं, फिर कॉलर बनाते हैं, फिर बटन होल करते हैं वगैरह वगैरह। तो समझ लीजिए कि आपको कॉलर रेडीमेड मिल जाता है, जो कलर चाहिए वो कलर में। तो आपको कॉलर बनाने की ज़रूरत नहीं, बाहर से कॉलर ले आइए, लगा दीजिए। उसमें आपका टाइम भी बच जाता है और कॉस्ट भी बच जाता है। और जितने समय में आप 10 शर्ट बना सकते थे पहले, अभी आप 10 के जगह पर 12 या 13 शर्ट बना सकते हो, क्योंकि आपको कॉलर बनाने की ज़रूरत नहीं, रेडीमेड मिल जाता है। तो कुछ इस तरह से आपको एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ। और तो ये बताया हमें जेफ गैल्विन ने, और इसके साथ हमने इंटरव्यू को समाप्त कर दिया। तो ये थी ट्रांसलेशन जेफ गैल्विन वाले इंटरव्यू की। तो दोस्तों समराइज़ वापस करता हूँ। फ़ेज़ 1 का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहा। फ़ेज़ 1 के बाद IRB के अप्रूवल के साथ उन्होंने स्टडीज़ को एक्सटेंड की, और एक्सटेंडेड स्टडीज़ में उन्होंने पाया कि जितने भी पेशेंट्स थे उनमें CD4 की मात्रा बिल्कुल घटी नहीं। ART बंद करने के बाद CD8 की मात्रा बढ़ी। इसका मतलब है कि CD4 जो है उसको इन्फेक्शन नहीं हुआ, और CD4 जो है उसने CD8 को HIV को मारने के लिए कहा, तो CD8 ने अपनी खुद की संख्या बढ़ा ली। इसकी वजह से CD8 की मात्रा बढ़ गई और HIV वायरस का लोड एकदम लो रहा, जैसे ART में होता है बिल्कुल उसी तरह। तो इसका मतलब ये है कि फंक्शनल क्योर ठीक चल रहा है। इसका मतलब है कि जो डॉर्मेंट HIV है वो कॉपीज़ बना बना के फेंक रही है, और जो
सशक्त CD4 AGT 103-T का है, वो जाकर उसके साथ CD8 के ज़रिए लड़ रहा है। इसकी वजह से CD4 की मात्रा स्टेडी, CD8 की मात्रा बढ़ी और HIV वायरस की लोड की मात्रा एकदम घटी सी रह गई। तो दोस्तों ये था समरी। और आपको ये भी बता दूं कि फ़ेज़ 2 उन्होंने कहा कि फ़ेज़ 2 शुरू करने की अप्रूवल इस साल मिल सकती है और फ़ेज़ 2 शुरू होगी अगली साल। और उन्होंने कहा कि जल्दी करने के लिए अगर फ़ेज़ 2 की स्टडीज़ में उनको अच्छी रिज़ल्ट मिली तो वो उनका प्लान चेंज करके FDA के पास दोबारा जा सकते हैं ताकि अप्रूवल जल्दी मिल जाए। तो ये भी उन्होंने बताया। और दूसरे देशों को बेचने के बारे में उन्होंने कहा कि USA के अलावा और भी देशों में एडइम्यून जो है वो HIV थेरेपी AGT 103-T बेचने को तैयार है। और उसका जो कि ये छोटी कंपनी है, नई कंपनी है और इसने इतने सारे पैसे डाल दिए हैं ये थेरेपी बनाने के लिए, तो शुरुआत में ही घाटा नहीं कर सकती, इसलिए वो पहले बड़े बड़े देशों में शुरू करेगी। मिसाल के तौर पर US, यूरोप, ऐसे देशों में जहाँ पर हेल्थ केयर सिस्टम है जो ये थेरेपी खरीद कर पेशेंट को दे सकती है, इतनी महंगी थेरेपी। लेकिन आगे चलकर वो और भी देशों में थेरेपी बेचेगी। और एक ज़रिया ये है कि लाइसेंसिंग करने का, अगर कोई ऐसा देश है जिसके पास ये खरीदने की क्षमता नहीं है तो उसी देश में अगर कोई मैन्युफैक्चरर है जो इसके काबिल है कि ये थेरेपी बना सके तो उसको लाइसेंस देकर उसके ज़रिए बनाकर लोगों तक ये दवा पहुंचाने का इरादा है जेफ गैल्विन का। तो आगे देखना है कि कैसे होता है। तो उनका कहना यह है कि सबको आशा रखनी चाहिए कि हर एक जगह पहुंच जाएगी, क्योंकि जिस तरह से पहले कंप्यूटर जो थी बहुत महंगी थी और बहुत बड़ी थी और उसकी क्षमता कम थी, लेकिन आज की तारीख में आपके पॉकेट में जो सेल फ़ोन है उसमें उस पहले वाले कंप्यूटर से इतनी ज़्यादा क्षमता है और उससे इतनी कम कीमत है। तो उसी तरह टेक्नोलॉजी के बढ़ते बढ़ते कंपटीशन भी आएगी। AGT अकेले ही HIV का थेरेपी नहीं बल्कि और भी कॉम्पिटिटिव थेरेपीज़ आएगी और ये सब के चलते टेक्नोलॉजी का भाव भी कम हो जाएगा और प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम हो जाएगी, उसकी वजह से सभी जगह पहुंच जाएगी। तो सबको आशा रखने की सलाह दी है जेफ गैल्विन ने। तो दोस्तों इसके साथ मैं समाप्त करता हूं यहीं पर इस वीडियो को। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। लाइक दबा दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।